Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Yeah, so it is my pleasure to introduce our distinguished speaker for today's session on IGCSE to NEET JEE Breach Plan. We have with us Dr. Praveen Kumar Jha, a highly accomplished medical professional and educator. Dr. Jha completed his MBBS from the prestigious Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi, and holds a master degree in psychotherapy and counseling. He has served our nation with dedication as ex-commandant medical in Border Security Force, bringing his expertise to both healthcare and leadership in challenging environments. Currently, Dr. Jha is deeply involved in guiding and mentoring NEET aspirants, helping them navigate their journey from school curriculum to competitive exam success. Today, he will share valuable insights on how students from IGCSE background can effectively transition their knowledge and skill towards excelling in NEET and JEE exams, a bridge that connects international academic standards with the demands of India's most competitive entrance examination. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Praveen Kumar Jha. We welcome you, sir, to the school. Now, I would like to invite our respected principal ma'am to come onto the stage and share a few words of encouragement and guidance with us. Please, ma'am. Good morning, dear students. Good morning, our esteemed guests. I wholeheartedly welcome you to SVS School, Dr. Praveen. We've had many talks with each other, exploring the same thread of thought, and eventually it translated into today's talk. Why so? Children leave schools to join maybe CBSE schools after 10th or maybe 9th onwards, and because it is good for them so that maybe they can prepare for NEET or IIT later on. He was brave enough. He knew. He plucked his kids from a CBSE school and put them at SVA. Now that says something. And why he did that, you'll get to know in detail now. So I welcome you both to school. Thank you for being here, not taking much of your time. This is far more important. So children, please understand this carefully. Okay, thank you. And there's a child who's sleeping. Go wash your face and come back. Thank you. Good morning, everyone. The most important thing कि अगर सोना नहीं है तो डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं. ठीक है? तो आपके तरफ से जब आंसर्स आएंगे और आपके तरफ से क्वेश्चंस भी आएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. और किसी को तो नींद नहीं आ रही है? श्योर? स्टार्ट करें? चलो. स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा स्टोरी से स्टार्ट करता हूं मैं. 4-5 फ्रेंड्स थे, उनके आंखों में पट्टी बांध दी गई और एक हाथी को टच करने बताया गया और बोला क्या है देख रहे हो या क्या जानते हो इसके बारे में. एक फ्रेंड ने कहा कि एक पिलर है, दूसरे ने कहा नहीं एक रस्सी है, तीसरे ने कहा नहीं एक बहुत बड़ा सा लीफ जैसा लग रहा है कुछ, चौथे ने कहा नहीं एक ड्रम है.
अब आप बताओ कि हाथी ड्रम है, रस्सी है, लीफ है, क्या है? हाथी सिर्फ हाथी है। सिर्फ हाथी ड्रम बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से नीट या जेई है, वो कोई मॉड्यूल बनाने से हो जाता है, वो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने से हो जाता है, वो भी नहीं है। वो गुजरात बोर्ड के स्कूल में जाने से हो जाता है, वो भी नहीं है। वो कोटा जाने से हो जाता है, दिल्ली जाने से हो जाता है, भावनगर जाने से हो जाता है, बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ प्रॉपर प्रैक्टिस करने से, उस सिलेबस को प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझ के और आंसर करने से हो जाता है। तो नीट हाथी नहीं है, लेकिन नीट सिर्फ नीट है। क्लियर है? ये मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से, बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, जिन्होंने कहा कि सर अगर नीट करना है तो IGCSE छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करोगे? सर वो कोटा चले जाएंगे। कुछ ने कहा नहीं सर अहमदाबाद चले जाएंगे। कुछ ने कहा नहीं सर दिल्ली चले जाएंगे। मतलब दुनिया के किसी छोर में चले जाओगे। नीट को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो भुज में और कोटा में अलग अलग नहीं हो जाएगा। हाथी तो हाथी ही रहेगा। ठीक है? इसलिए नीट को समझने के लिए या जेई को समझने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रियल में नीट है। आप कहीं भी चले जाओगे, नीट का क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट है और आपको NCERT आती है। सिर्फ दो ही चीज है। जितना कुछ भी लोग कह रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वही लोग हैं जो आंख में पट्टी बांध करके हाथी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नीट को अगर आंख में पट्टी बांध के एक्सप्लेन किया जाएगा तो गलत ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम है कि NCERT से बाहर क्वेश्चंस आता ही नहीं है। अगर आप 2025 के नीट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इस बार सिलेक्शन काफी कम हो गया। 720 में 540 में सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जबकि लास्ट ईयर 660 में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन काफी नीचे चला गया, फिर भी 100% क्वेश्चंस NCERT से था। सिलेक्शन कम क्यों हो गया? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जैसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया तो जो रट के क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो NCERT से सारे क्वेश्चन आने के बाद भी कम क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये था कॉन्सेप्ट नहीं था बहुत सारे बच्चों को। तो एक क्वेश्चन उठता है कि जब NCERT से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आने हैं तो फिर कहीं और क्यों जाए? हम CBSE बोर्ड में पढ़े और NCERT पढ़ते रहे। ऐसा ही है? ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स NCERT से 100% क्वेश्चंस आता है, लेकिन NCERT से कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। NCERT बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही कंसाइज में चीजों को दे देता है। बहुत बार तो उसके डायग्राम से आप बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। जबकि IGCSE A and AS लेवल बुक्स जो है, अगर उसमें आप देखेंगे, जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो उसके डायग्राम में ही बहुत कुछ होता है। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनता है आपका। एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन गया, फिर आप NCERT पढ़ें और 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां नीट लेवल के सॉल्व करके दिखा दूंगा और आप कर पाएंगे। इवन आप 7th या 8th के बच्चे भी कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। तो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको पहले, सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। स्लाइड देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट अ लोअर ब्लड pH, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन शिफ्ट्स टू द राइट रीजन, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन concentration reduces hemoglobin's affinity for oxygen. ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स डिफरेंट फॉर्म में नीट में आया है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल आप में से जो 7th-8th में भी पढ़ रहे हैं वो इतना बता सकते हैं कि ब्लड का pH क्या होता है। ब्लड अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है? यस, अल्कलाइन। वेरी गुड। दैट मीन्स कि एसिड अगर जहां भी ब्लड में जाएगा तो
ब्लड उसको अवॉइड करेगा। यस, एसिड नहीं चाहेगा बट ब्लड आए, क्योंकि अल्कलाइन ब्लड को रखना है हमें। अगर अल्कलाइन ब्लड को रखना है तो जहां CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उस जगह पे एसिडिटी रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। क्लियर है? तो जहां CO2 रहेगा वहां ऑक्सीजन रिलीज करेगा या नहीं करेगा? लेकिन ऑक्सीजन की, मान लीजिए जिस जगह पे ऑक्सीजन की जरूरत है, CO2 है, CO2 है तो ऑक्सीजन की जरूरत है वहां, तो वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तब इस केस में देखिए, लोअर पीएच मींस पीएच कम मतलब एसिडिटी। 7 pH इज न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर एल्कलाइन। तो लोअर पीएच पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन अटैच होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन से, ये जानते हैं आप लोग? श्योर? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जब अटैच हो जाता है तो लंग्स के पास वो ऑक्सीजन आता है तो आराम से अटैच हो जाता है। जब टिश्यू के पास जाता है तो वो डिटैच होता है, डिसोसिएशन होता है उसका। तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो है उससे एक कर्व बनता है, ग्राफ बनाते हैं हम, तो वो कैसे शिफ्ट करेगा, इस पे क्वेश्चन है। देखने से लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, कुछ भी नहीं। अब सिंपल आप देखें, जैसे ही लो पीएच हुआ तो आप बताइए कि लंग्स के पास लो पीएच होगा या टिश्यू के पास? क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पीएच लो हो गया। तो अगर लो पीएच हो गया तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। तो डिसोसिएशन कर्व देखिए, शिफ्ट टू राइट, राइट में रिलीज होता है। अगर कर्व देखेंगे तो राइट तरफ जाएगा तो रिलीज होता है, दैट मीन्स कि कर्व राइट तरफ जाएगा, रिलीज कर देगा। नाउ द आंसर इज बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A and B. कौन सा आंसर हो सकता है, आप बताओ? अगर लो पीएच है मीन्स कहां पर हम है, टिश्यू पर या लंग में? सिर्फ इतना बता दीजिए। टिश्यू में है, टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज होगा या नहीं होगा? बाइंड होगा, रिलीज होगा। तो टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज होगा, और रिलीज तब होता है, थोड़ा सा आप जब क्लास 11th में जाएंगे आप में से कुछ तो पढ़ेंगे कि रिलीज होता है जब राइट तरफ कर्व शिफ्ट होता है। दैट मीन्स लोअर पीएच पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिलीज करेगा, रिलीज मतलब राइट शिफ्ट होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग? करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन है, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स की एसिडिटी रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब हीमोग्लोबिन से अटैच होने का उसका अफेक्शन, उसे अटैच होना चाहता है। तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन से अटैच होना चाहेगा या रिलीज होना चाहेगा? रिलीज होना चाहेगा, एफिनिटी कम हो जाएगा। श्योर? एफिनिटी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट। तो आंसर है ए, बोथ एंड बी आर करेक्ट। मुश्किल है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Marine mammals can die for long periods without breathing. Which of the following is not a physiological adaptation for the accidental dive? Marine mammals बहुत देर तक अंदर डाइव करके रह जाते हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है? ब्रेडिकार्डिया, peripheral vasoconstriction, increased myoglobin in the muscles, increased metabolic rate during dive. Again, seems to be complicated. अब मैं 11th या 10th के नहीं, 7th 8th के बच्चों से पूछता हूं कि अगर आपको सांस बंद कर दिया जाए या सांस थोड़ा देर के रोकना पड़े तो क्या आप खूब तेज दौड़ सकते हो उस समय? मुश्किल है। इसका मतलब आपके बॉडी को मेटाबॉलिज्म, दौड़ेगा तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, बॉडी के फंक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ज्यादा दौड़ने के लिए आपको सांस ज्यादा चाहिए। अब डाइव करने पे सांस रुक गया है, तो अगर सांस रुक गया है तो मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो सांस ज्यादा चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हम एनर्जी कहां से लेते हैं? ग्लूकोज से। ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन में और एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी चाहिए तभी तो मेटाबॉलिज्म कर पाएंगे आप। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में जितने एक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, कार्डियक सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे मेटाबॉलिज्म है। अब कुछ भी करने के लिए
स्कूटी चलाने के लिए भी पेट्रोल चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो आपके एक्टिविटी करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज को बर्न कौन करेगा? ऑक्सीजन। जब डाइव करके आपने सांस रोक लिया तो ऑक्सीजन कम है, अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या मेटाबॉलिज्म ज्यादा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म स्लो होना चाहिए। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म नॉट करेक्ट। ए कैसे होगा? फिर से देखिए, विच इज नॉट डी, यस डी, डेल्टा डी इज द आंसर। किसी को कंफ्यूजन? क्योंकि अगर इंक्रीज रहेगा तो सांस ज्यादा चाहिए, सिंपल। और पानी के अंदर सांस ले पाएगा ज्यादा? नहीं ले पाएगा, इसलिए उसका सांस कम ले रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी कम है। अब क्वेश्चंस को अगर कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए आंसर कितना आसानी से कर पा रहे हैं, इवन 7-8 के बच्चे भी कर पा रहे हैं। तो नीट के क्वेश्चंस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे आंसर आता है, और कॉन्सेप्ट बनता है आपके अपने स्कूल के बुक्स से। जो बुक आप पढ़ रहे हैं आईजीसीएसई में, 9th-10th में, 7-8 में, एंड इवन जब आप ए एंड एएस लेवल में जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं बुक्स लेके आया हूं और मैं दिखा सकता हूं कितना फर्क है। तो क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट रहे तो 7-8 के बच्चे बना लेते हैं, इसलिए सबसे जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगेन ये एएस लेवल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। When an electron in hydrogen jumps from n equal to 6 to n2, it emits lights of wavelength lambda 1. When it jumps from n5 to 2, wavelength is lambda 2. Without calculation, predict which wavelength is shorter and justify. Students of 11th or 12th, please answer. Come on. जो भी आंसर आप सोच पा रहे हैं, 11th एंड 12th, 10th, फिर मैं आंसर 7th क्लास के बच्चों से कराऊंगा, लेकिन पहले 11th 12th ट्राई करें। यस प्लीज। lambda 1 is shorter. Very good, excellent, it's correct. How? Because the energy of n equals to 6, so because the energy is higher, that's why the wavelength would be less. Very correct. High energy, so wavelength would be shorter. yes, correct. बहुत अच्छा। तो देखो, बिना एनसीईआरटी पढ़े ही इसने नीट के क्वेश्चन का आंसर कर दिया। दिस इज द मैजिक ऑफ कॉन्सेप्ट। अब मैं छोटे बच्चों को जो 7th-8 में है उनको बताता हूं कि कितने आसानी से हो सकता है। आप जस्ट सोचो कि 6th फ्लोर से एक बॉल को नीचे गिराओ, ठीक है, और वो नीचे मान लो रेत रखा हुआ है, सैंड है, उसमें अंदर धंस जाएगा, उसको पेनिट्रेट करेगा। यस। अब 5th फ्लोर से दूसरे बॉल को गिराओ, कौन ज्यादा अंदर जाएगा? 6th वाला, श्योर। सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ग्रेविटेशन एट्रैक्टिव फोर्स है बॉल के लिए, यहां न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को उसी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। तो 6 ऑर्बिट से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने में ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू 5th से 2 तक आने में। तो 6th से 2nd फ्लोर तक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और 5th से 2nd पे आ रहा है, तो 6th वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, श्योर। और अगर ज्यादा एनर्जी है तो वेवलेंथ रिवर्स होता है। एक छोटा सा फार्मूला है, E इक्वल टू SC बाय लैम्डा, मींस सीधा सीधा एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जिसका वेवलेंथ छोटा उसमें ज्यादा एनर्जी। तो इसका मतलब 6 वाले में एनर्जी ज्यादा, तो वेवलेंथ किसका छोटा? 6 वाले का। हो जाएगा? इजी है। यूजुअली नीट के क्वेश्चन इस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसको कि अब आप चाहें तो 15 सेकंड में, 20 सेकंड में बना सकते हैं। और नहीं समझे हैं, इसको पूरा सॉल्व करने में आपको कम से कम
प्रणव सर यहाँ है, बता सकते हैं, केमिस्ट्री में वो टाइम लगाएगा कि एक बच्चा 2 to 3 मिनट्स। अब नीट में सबसे बड़ा कैच यहीं पर है, अगर आपने एक क्वेश्चन में 3 मिनट्स लगा दिया, इसका मतलब कि लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, जो इस साल हुआ है बहुत बच्चों के साथ। वो बायो में ही उनको इतना समय लग गया, केमिस्ट्री बनाते बनाते वो पैनिक हो गया और फिजिक्स के क्वेश्चन वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो नीट का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम जेईई के साथ भी है कि आप फास्ट रहें और एक्यूरेट रहें, और फास्ट तब होंगे जब कॉन्सेप्ट रहेगा। अदरवाइज इसका पूरा फॉर्मूला है एनर्जी निकालने का 1/n² - n2² पर, और पूरा निकाल करके फिर जब आप बनाएंगे तो 3 to 4 मिनट्स लगेगा, जबकि विदाउट कैलकुलेशंस आप आंसर कर सकते हैं। अभी तक मैंने ना तो मार्कर लिया ना बोर्ड स्टार्ट किया, और आंसर 7th 8th के बच्चे कर पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ट्राई कर देता हूं, नेक्स्ट। Arrange in the increasing ionization enthalpy sodium, magnesium plus aluminum 2+. Given all three are isoelectronic with neon. Explain purely with the nuclear charge logic. Class 11th and 12th के students, please answer. Ionization enthalpy पढ़ चुके हैं? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही है। Yes, please come. Anyone? 8th 9th के बच्चों को लग रहा है कुछ बहुत टफ है। अगेन बहुत आसान है, जैसे बॉल गिराना था उतना ही आसान है, ये भी कुछ भी नहीं है। यस प्लीज, एनी 10th के बच्चे? 10th में आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गया है आपके सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में है। 10th के 9th के बच्चे? यस नहीं, आराम से कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कर पा रहे हो? यस सर, सबसे पहले Al2+, then Mg+, then Na+. इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं, लोएस्ट किसका है? Na. सोडियम। यस, सेकंड मैग्नीशियम प्लस, ओके, एंड थर्ड करेक्ट, बिल्कुल सही। अब इसको मैं छोटे बच्चे भी बना पाए उस लेवल पे लाता हूं, अगर कॉन्सेप्ट है तो। आपने बहुत सही कहा, आयनाइजेशन इंथैल्पी नाम से बहुत बड़ा लगता है, कुछ भी नहीं। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, आयनाइजेशन मतलब आयन बनाना, आयन मतलब केटायन और एनायन। ये क्या होता है, सोडियम से में पॉजिटिव हो गया तो सोडियम आयन है, वो केटायन है। मैग्नीशियम प्लस देख रहे हैं, मैग्नीशियम का आयन है। एल्युमिनियम 2+ इस मैग्नीशियम का केटायन है, पॉजिटिव आयन। तो आयन बनाने में, आयन को मेक करने में जो एनर्जी यूज होता है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत मुश्किल नहीं है। और आयन बनता कैसे है? तो सोडियम है, सोडियम के सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, छोटे क्लास के लिए खास करके, 11th 12th तो जानते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो बोर्स का ऑर्बिट है उसमें घूमता रहता है। अब एक जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको एक किक किए और बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बाहर निकला तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसी को आयन बनना हुआ। तो किक करने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुश्किल है? नहीं, एक किक खाली करना है। अब किक करने में किसमें ज्यादा किक कर रहे हैं, किसमें कम कर रहे हैं। अब सिंपली इसको दूसरे तरह से समझो, अगर आपको एक रस्सी से बांधा हुआ एक पिलर है और रस्सी से बंधा हुआ है, और सबसे बाहर जो घूम रहा है, एक बच्चा घूम रहा है, उसको बाहर निकालना है। जो सेंटर से सबसे दूर में है उसको निकालना आसान है, या सेंटर से सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है उसको निकालना आसान है? जिसमें सेंटर से अट्रैक्शन कम होगा उसको निकालना आसान है, इजी। अब यहां पर आप देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये बहुत सिंपल 8 9 से आप पढ़ लेते हैं। तो 11 प्रोटॉन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो खींच रहा है उसके 11 इलेक्ट्रॉन को। मैग्नीशियम प्लस में अगेन 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 12 है, तो ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है। और एल्युमिनियम में 13 है,
और फिर 11 को ही खींच रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन 11 एल्युमिनियम 2+ में है। जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से खींचा हुआ है उसको निकालना मुश्किल, इसका मतलब उसका एंथैल्पी सबसे ज्यादा, और जिसको निकालना आसान उसका एंथैल्पी कम। ये नीट का क्वेश्चन है, मुश्किल है, आराम से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप अगर देखेंगे, इवन बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, खूब सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और खूब सारे टेक्निकल बातें बता रहे हैं। कुछ टेक्निकल नहीं है, सिंपल सा चीज है। एक धक्का मारे बाहर निकाले, किसको धक्का मारना आसान है? जिसको ज्यादा स्ट्रांगली नहीं पकड़े हुए हैं। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, नीट या जेई बहुत आसान है। अब उसके पूरे प्रोसेस को फिर मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्लाइड से देखिए। नाउ जो मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चंस बना के आपने देखा कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आईजीसीएसई के बुक्स और सिलेबस का कोर है कॉन्सेप्ट। आप एनालिटिकल होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है, और एक बार स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है तो नीट या जेई के क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। आपने देखा कि छोटे बच्चे बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट हो तो आईजीसीएसई के बुक्स का सबसे बड़ा बात है, कोर स्ट्रेंथ यही है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या इवन मैथमेटिक्स हो। और क्रिटिकल थिंकिंग, यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे अदर बोर्ड्स में वो रट के लिखना होता है आंसर, यहाँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे करना है। इवन आप लैब में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट बनता है। बहुत लोग कहते हैं जब सर नीट कर रहे हैं तो क्यों लैब में टाइम खराब करना है? वो टाइम खराब करना नहीं है, लैब में इस तरह के छोटे कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हैं, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ धक्का देना है और उस एनर्जी को निकालना है। ये समझने के लिए आपको लैब में जाना होगा, इस बुक को पढ़ना होगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नाउ एक बार कॉन्सेप्ट बनने के बाद आपको एनसीईआरटी लेकिन पढ़ना होगा, तो क्वेश्चंस आएगा एनसीईआरटी से ही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी एग्जाम है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकते। अब है कि सर दोनों चीज कैसे पढ़ूं, आईजीसीएसई भी पढ़ूं, इसके असाइनमेंट भी बनाऊं, लैब में भी जाऊं और एनसीईआरटी पढ़े, कहां से समय आएगा इतना? ये क्वेश्चंस बहुत बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं। आ रहा है आपके दिमाग में भी? आ रहा है ना? तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी, एक बुक दिखाइएगा प्लीज, केमिस्ट्री वाला। आप में से कुछ लोगों ने शायद एनसीईआरटी बुक भी ना देखी हो, तो आप नहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री वाले से देखिए, ये 11th केमिस्ट्री की बुक है। इसका थिकनेस देख रहे हैं आप? कितने दिन में हो सकता है? अगर कॉन्सेप्ट रहे 1 मंथ में, 10 दिन में, यस, बच्चे ने कहा 10 दिन में। दैट मीन्स कि इसको पढ़ने में आपको मुश्किल से, अगर डेली ½ एन आवर भी आप पढ़ते हैं तो खत्म कर लेंगे। फिर और बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इतने आसान है, 10 दिन में खत्म हो रहा था, इसको 30 टाइम्स 40 टाइम्स कर लेना चाहिए और सभी को कर लेना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे? वेरी गुड। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो दिन भर वो पढ़ता रहेगा, उसको समझ में नहीं आना है। आपका कॉन्सेप्ट है, आपको 2 घंटे लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 60-70 चैप्टर्स टोटल है 11th-12th में मिला के। आपको मुश्किल से ½ एन आवर अगर आप डेली देते हैं तो एनसीईआरटी के तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट है तब, तो आपको एज ए रेफरेंस अपना टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ अगर एनसीईआरटी आप करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से नीट में 720 में 710 या 720 ला सकते हैं। और 710 लाने का मतलब है इंडिया के एम्स में तो आराम से आपका दिल्ली एम्स में एडमिशन हो जाएगा। सेम जेई के साथ भी वही है। जेई की क्वेश्चन ऑलमोस्ट नीट जैसा है, मेंस के खास करके, और एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल ही नहीं आता है। सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन को आपको अलग से मास्टर करना होगा। अगेन कॉन्सेप्ट रहेगा एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी आप अलग से पढ़े जरूर।
अपने कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करें, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप सोचोगे कि कोटा जा करके, दिल्ली जा करके, देहरादून जा करके या अहमदाबाद जा करके मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हर जगह वही रहेगा। कोई कहेंगे मॉड्यूल्स बना लो, 3 लाख क्वेश्चंस बना लो, पॉसिबल है? 3 लाख क्वेश्चन बना लो और उसको याद रख लो, नॉट पॉसिबल। और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो फिर भी गलत हो जाएगा। जब भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो 6th के बच्चा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट बनाओ अपने सिलेबस से और एनसीईआरटी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लें तो बहुत आराम से आप पूरा का पूरा नीट या जेईई आराम से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा गैप जो है सिलेबस में, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में नहीं, उसको गैप फुलफिल करने के लिए ये बुक्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक्स में आप एनसीईआरटी नीट के लिए एक डीसी पांडे का ऑब्जेक्टिव आता है, आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो आपके अपने कोर्स के बुक साथ में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हो सकता है। बट अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो डीसी पांडे का साथ में अगर आप कर लेते हैं, या सेंगेज एंड एससी वर्मा फॉर जेईई। एंड कैम्ब्रिज ने अपना एक कनेक्टिंग ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से ही ये बुक है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो एनसीईआरटी में नहीं है उससे गैप पूरा हो जाता है। केमिस्ट्री में नथिंग एक्सेप्ट एनसीईआरटी एंड कैम्ब्रिज बुक। बायोलॉजी ओनली एनसीईआरटी इज एनफ एंड योर कोर्स बुक। एंड मैथमेटिक्स एंड आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एंड सेंगेज। नेक्स्ट, ये मैंने जानबूझ के एक डायग्राम आपके सामने रखा है, तो आप देखिए ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। इस डायग्राम से आपको एल्विलाई कहाँ है पता चल रहा है? लेफ्ट में एल्विलाई, और एल्विलाई के आसपास कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्लियर हो रहा है? ब्लड वेसल्स पता है, चल रहा है? कुछ नहीं? आप राइट में जाएं, यहां देखिए लंग्स का एल्विलाई, एल्विलाई में किस तरह से कैपिलरीज है और कैपिलरीज ऑक्सीजन आराम से ले पा रहा है। ये पूरा डायग्राम कितना पूरी तरह से क्लियर है, कॉन्सेप्ट बनाता है आपका। ये आईजीसीएसई बुक से है, ये एनसीईआरटी है। क्यों आईजीसीएसई अब समझ में आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल से पता चल रहा होगा। तो आप कॉन्सेप्ट वहां से बनाइए, क्वेश्चन पहले यहां से बना लीजिएगा। नाउ एनी क्वेश्चंस? मैंने पहले कहा मोनोलॉग होगा तो सब सोएंगे, इसलिए डायलॉग रखिए। यस बच्चों, यस प्लीज। So what is the full form of NCERT? एनसीईआरटी नेशनल कैरिकुलम का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है? जो नेशनल एजुकेशन ट्रस्ट है उसका फुल फॉर्म है, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, इसमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए बच्चा बहुत छोटा है तो मैंने इसलिए इसको सिर्फ उतना ही बताया। मे बी इन 6th और 7th। यस, नीट का कोई बायो के बच्चे जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, या 9th-10th के फाउंडेशन जो सोच रहे हैं आगे नीट करना है उनको कोई क्वेरी हो, या खास करके जो प्लान कर रहे हैं अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, कोटा जाने का, तो वहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा और यहाँ क्या नहीं मिल पा रहा है आपको, आप पूछ सकते हैं। यस, In LN quota, in LN thing, they start preparing students from grade 6 for JEE NEET foundation. So don't you think it is focusing on that from lower standards is better than doing this? ऑफ कोर्स क्लास 6 से फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स से कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे हैं, तो बच्चों को क्लास 6 से ही प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर रहे हैं।
बट आपके बुक में आईजीसीएससी का बुक है, ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो आपके केस में उसकी जरूरत नहीं है। जो एलन वहां जाकर कर रहा है वो आराम से हो पा रहा है। यस प्लीज कम। मैम बायो टीचर हैं पीजीटी के। Good morning, everybody. I'm Ms. Chandni Jha, and I'm Masters in Biotechnology. So the answer to your question, beta, regarding the foundation course. So the answer for that is the curriculum which has been designed by the IGCSE board is so advanced and well framed that means I noticed in your textbooks also the portions, many of the portions, say for example, the pedigree analysis topic that has been given in class 10th and which is introduced in case of CBSE, it is introduced in class 12. So you you are already moving in an advanced way. Your curriculum is so advanced. So if you are starting right here from class 5th or 6th, so you are matching a level of class 8 and 9 of CBSE board. So means what do we recommend you is stick to your curriculum, and to bridge the gap you need to work a little on the NCERT, and your syllabus is going to help you a lot in that. How? Because it has well explanatory diagrams. Say for example, if I talk about one more example which is regarding the class 10th or 11th students might be able to relate it very well. Like there is one topic, cell biology, cytology. You must be having one unit. Yeah? Yes or no? Yeah, it is there. Okay, so you have 3-4 chapters in that. One is related to the cell division, the basics of the cell structure and the enzymes. So there are so many diagrams. Say for example, there is one diagram of the fluid mosaic model which refers to the plasma membrane. That's a diagram for the plasma membrane. So there is one structure, there is one molecule, compound, cholesterol. So cholesterol is also attached to the plasma membrane. So in NCERT, they have labeled it in the diagram, but nothing is mentioned about cholesterol, and the child may have the query in the mind that what is this cholesterol doing here in this plasma membrane structure. So that is explained in your curriculum, in your syllabus, that it helps in maintaining the balance, it helps in maintaining the strength of the membrane. And how does it maintain? How do that cholesterol maintains the strength or maintain the balance of the plasma membrane? That is also very well explained in your syllabus, in your book. So it is, see, the question, the students are juggling, they are struggling with the syllabus of NCERT. NCERT is totally like Gagar mein Sagar. Sara diya hua hai, but it is in such a concise manner that the students have a lots of doubt, they start mugging it up. And by mugging it up, you won't be able to attend the analytical questions. Right, because the problem that the student face, this time, what was the actual problem with the NEET paper? See, it was strictly from the NCERT, but the problem was the questions were slightly lengthy. तो वो लेंदी क्यों लग रहे थे बच्चों को? Because they were not having any command over the concepts. Right, they were mugging up the lines from the NCERT. If you would have started the same topics from your book, you would have been able, the child would have been able to attempt it in a better way, and the time management would have been a problem over there. ठीक है? Because see, it's like a link, it's like a chain. आपका concepts पे command है, then you will be able to very well maintain the time also, you will be able to manage the time also, and you will be able to manage the stress also. So it's like a chain, right? And you will be able to score better in that way. So please, and one more thing which I got to in last few days, that they have Cambridge board has introduced the bridge gap also. The bridge means the gap which is there between the NCERT and your curriculum, that has been bridged or maintained. Okay, so please go through that book also. NCERT is a must read. Why? Because in NTA exams, National Testing Agency, which conducts the NEET exam, they directly take up the lines from the NCERT and frame it as a question. So just for that sake, you are supposed to go through your NCERT also. But yeah, that can be very well maintained, that can be very well managed. Means in your extra time you can do that. You will be able to do it fast if you have command over your concepts, and that will be maintained with the help of your curriculum, which is the IGCSE board. So stick to that better. Thank you.
यस आई थिंक क्लास 8th इज द आइडियल ग्रेड जहां से फाउंडेशन फॉर नीट और जेई शुड बी स्टार्टेड. क्लास 8th. बट क्लास 8th का जो IGCSE का सिलेबस है सर, वो ऑलरेडी CBSE के 10th से बहुत कुछ मैच करता है. तो 8th से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन हो सकता है. इवन 9-10 से भी जो बच्चे कर रहे हैं वो अच्छा एक्सेल कर सकते हैं. बट 8th इज द बेस्ट, आइडियल इज द 8th. सर 2-3 चीजें ऑफ कोर्स. इनफैक्ट नीट अगर कोई करना चाह रहा है या जेई, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं. अगर इंटरेस्ट बिजनेस में है तो कॉमर्स ले. साइंस अगर उसको पढ़ना है और अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो नीट उसके लिए है. अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो मैथ उसके लिए है, PCM लेना चाहिए उसे. अदरवाइज PCB इज द बेटर ऑन. एंड उसके अलावा जैसे बायो भी ले रहा है तो उसके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं. जैसे नीट का सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होता है. फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, फिशरी, एग्रीकल्चर, मेरीन बायोटेक, इवन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब बायो में भी है. मैथमेटिक्स में तो फिर स्काई इज द लिमिट, सब कुछ है. जितने भी एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में होता है सब में मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल हैं. तो अब डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करना चाहता है. इंटरेस्ट फर्स्ट है. सेकंड कि उसका अपना किस तरफ इंक्लाइनेशन है. अगर मैथमेटिक्स उसे बहुत अच्छा आता है, उसमें उसको मजा आता है, उसमें उसका कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो दैट चाइल्ड शुड बी गो फॉर जेई. एंड जेई के थ्रू वो फिर अदर्स बहुत सारे ब्रांचेज है जिसको क्रैक कर सकते हैं. इवन अगर यूपीएससी में किसी का इंटरेस्ट है तो यूपीएससी का इंटरेस्ट है तो डिपेंड करता है. एक तो उसका इंटरेस्ट, उसके अलावा उसका जो फाउंडेशन है, फिर ऑल सब्जेक्ट्स में उसको इक्वली होना चाहिए, तभी यूपीएससी बहुत अच्छा कर सकते हैं. एंड यूपीएससी के लिए भी अगेन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं. और एनसीईआरटी तभी बनेगा जब उसका कॉन्सेप्ट रहेगा. If a father has a dairy business, so a child wants to pursue science subjects, so he may definitely pursue food and dairy industry, food industry. So that courses are always available for the child. So because in that ways he can help his father later on in his life in uplifting the business also. Because in that case he would be able to learn about many preservative techniques, many better ways to, many other formulations that can be adopted in the dairy industry. So the child may be able to help the father in that case. So these are the right streams. In that ways he will be able to pursue the science subjects and also will be able to enter into the business of the father. So totally it depends upon the interest of the child. That is the foremost thing which is required. और अगर फादर फार्मर है और खुद भी फार्मिंग करना चाहता है तब भी साइंस और पर्टिकुलरली बायो पढ़ने में उसको बहुत फायदा हो सकता है. क्योंकि पॉली हाउस के कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो इजराइल से यूजुअली लिया गया है, जिसमें 10 टाइम्स से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. अगर कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो फार्मिंग बिल्कुल ही नेगेटिव बिजनेस हो जाता है. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है, टेक्नोलॉजी पता है, तो फार्मिंग बहुत ही प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, बहुत ही बेटर मतलब कैरियर ऑप्शन हो सकता है. इवन फार्मिंग Many of the farmers in Rajasthan are already adopting this technique, पॉली हाउस टेक्निक. has been, the tech from the Israel. So that way they are able to, get more and more yield. They are able to live a lavish life. इनफैक्ट नीट में अदर ऑप्शंस भी पता होना चाहिए. बहुत बच्चों को पता ही नहीं, सोचते सिर्फ मेडिकल है. मेडिकल, पैरामेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी, फॉरेंसिक सभी नीट के थ्रू एडमिशन होता है या CUET के थ्रू. CUET भी 10+2 के बाद एग्जाम है सर, जो ऑलमोस्ट नीट से थोड़ा सा
इजियर क्वेश्चंस रहता है उसमें। और सीयूटी के थ्रू फॉरेंसिक में जैसे गांधीनगर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है सर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उसमें। या इस समय डिफेंस टेक्नोलॉजी में मैथ एंड बायो दोनों के स्टूडेंट जा सकते हैं। CUET is basically combined university entrance test, which is required to be appeared for entering in any of the university in India. And through NEET also, by appearing in NEET, a child is open for multiple options. It is not only restricted to the medical stream or the dental or Ayurveda or BHMS. It leads you to the physiotherapy courses also. CUET opens up the window for many of the courses which are available in India, like biotechnology courses. Even after, if you have either you have your bio subject or even if you have the maths, so the biotechnology options are open for both of you. In both the cases. Like if you are having the mathematics as one of the subject, then BTech biotechnology is an option for you. If you do not have mathematics, you just have biology as a main subject other than your physics and chemistry, then you are open for this BSc biotechnology or maybe MSc biotechnology, which can later on be continued with the PhD and so many courses after that. So there are multiple options. Career counseling becomes a new, different topic in that case. So it's it requires a vast discussion. Any other query? Yes, beta. JEE streams. JEE के 3 streams. कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल and many more. सिविल में फिर आर्किटेक्ट एंड अदर्स। अभी सबसे पॉपुलर है कंप्यूटर एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। एंड रिसेंटली some universities had introduced AI, artificial intelligence, but as part of computer at present. But future में most हो सकता है कि AI separate branch हो जाए। Usually you have to score at least 70 percentile. It always in percentile. The highest marks considered as 100 percentile. If you score 70 to 80 percentile, you may have a very good colleges. Yes. Many of the students prepare for NEET simultaneously while preparing for 12th. So in university level, like games, and do they consider the percentage of your 12th, or do they consider the rank of your NEET exams? Only NEET percentage. And they consider. बच्चे का क्वेश्चन ये है कि अगर नीट का एग्जाम दे रहा है कोई, तो एम्स में या किसी और स्कूल में, किसी और कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम में बोर्ड के एग्जाम का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है या एंट्रेंस के एग्जाम का? तो कंसिडर सिर्फ एंट्रेंस के एग्जाम को ही किया जाता है। बट एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 75% इन बोर्ड। लेस देन 75% तो एम्स या प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जितने हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 75% इन बोर्ड। आफ्टर दैट आप 95 है या 75 है, इक्वल। Only entrance examination marks is important after that, but minimum 75% is important. So for any of the government university or any of the government college, you need to crack the exam. Means marks criteria means you the selection won't be on the basis of the merit which you get in your class 12. So it won't be on that. But yes, it is definitely going to help you. If a child thinks that marks doesn't help, they are not going to help me out in my selection, so that's very wrong, because they will be, if you get a good score, it refers that you have prepared well. And your preparation is definitely ultimately going to help you in cracking any of the exam. इनफैक्ट एक कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में मैंने देखा है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, अब बोर्ड में आए या नीट में आए या जेई में आए तो क्या फर्क पड़ता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर यू हैव द कॉन्सेप्ट तो आप बोर्ड के लिए लिख सकते हो, 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क्स डजंट मैटर। और एमसीक्यू फर्क पड़ता है क्या? पता होना चाहिए कि वो क्या है, अदरवाइज
घूमते रहेंगे। तो इसलिए दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अगर कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी आना चाहिए और आ जाएगा, बट उससे एडमिशन में बहुत फायदा नहीं होगा। बहुत उसके लिए आपको फाइनली एंट्रेंस ही क्रैक करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक ऐड करना चाहूंगा, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज का भी ग्रेजुएशन में अब एडमिशन CUET के थ्रू हो रहा है, अगेन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही। बोर्ड के मार्क्स पे एडमिशन इंडिया में अब बहुत कम यूनिवर्सिटी में बढ़ाया गया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर ही एडमिशन लेता है, इवन जनरल कोर्सेज में भी। There is one more issue which is required to be highlighted here, because so many students and especially the parents think that we come across so many parents, those who have doubt, like if a child is preparing for the NEET, then the boards might get affected. If a child is preparing for the board, then how my child will be able to sit or appear for the NEET or maybe any other entrance exam. See, first thing that you need to realize and understand and realize is that these two are not different things, beta. Because the curriculum is the same. Even if you are appearing for the boards or you are appearing for any of the entrance exam. Just the difference is of the question pattern. Means in your boards you might be having the subjective questions, you might be having a very few number of objective questions. But most of the entrance exams, they means that they are having the paper which is having only the multiple choice questions. Only that is the difference. But even for attempting or getting an answer of a multiple choice question, you need to have the concepts. Huh? So the better strategy is you need to practice in a two-way method. Like while a child is preparing right from class 9th or maybe even from class 11th, so a child needs to practice in a two-way pattern. Means he needs to have a practice of the subjective questions. Along with that, a child needs to have the practice of the multiple choice questions also. So that is the key to success, what I think, right? And there is no difference in the syllabus. So don't bother about that. Don't worry about it. Yes. Yes. Question is कि some chapters are not in IGCSE but in grade 11, A and AS levels in CBSE. First and foremost, there is a bridge course and कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ही वो बुक स्टार्ट कर दिया है, तो आप ब्रिज कोर्स के बुक से उस चैप्टर्स को कर सकते हैं या फिर आपको एनसीईआरटी से करना होगा। बट जो भी चैप्टर नहीं है उसका एक्चुअल में रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको आईजीसीएसई में रहता ही है, सिर्फ कुछ पोर्शंस नहीं रहता है, तो वो आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी को तो करना ही पड़ेगा, वो गैप को फिल करके बिना आप नहीं कर सकते, बट आपका कॉन्सेप्ट आईजीसीएसई ऑलमोस्ट 100% चैप्टर्स का कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईसीएसई में बिल्कुल नहीं दिया है, बट वो डिफरेंट फॉर्म में है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने का काम आ सकता है। इंफॉर्मेशन थोड़ा कम हो सकता है किसी चैप्टर्स में, वो आराम से एनसीईआरटी से हो सकता है या गैप ब्रिज कोर्स से कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कैम्ब्रिज ने भी निकाला है। JEE exam, even then you are supposed to go through your NCERT. Reason being, because the NTA has a pattern of picking up the lines straight from your NCERT and putting it as a question, right? So even the topics might be similar. I am saying that even the 100% chapters are same. Even then you are supposed to go through your NCERT, because you might not be having the same exactly lines written as they are written in the NCERT. You might not be getting the same lines in the IGCSE board books. So for just to fill that gap, what we are emphasizing is go through your syllabus. That is going to help you in building your foundation. Just to bridge the gap, you need to go through the NCERT. What the other students, your other board students are doing in entire year, you will be able to do that in a month or maybe 2, right? So do that ways. You are supposed to bridge the gap with the help of reading, by reading the NCERT or maybe the course which is provided by your Cambridge Bridge course. Any other query? Yeah, please. What is the age criteria to the exam, to appear for the exam? So the minimum age criteria is 17 years, right?
If you are sitting in class 12 and having an age of 16 years, you will have to wait for 1 more year. Okay? So minimum age criteria is 17, 17. Yes. As you told that the concepts are getting clear in grade 5 to 6. So the Navodaya and Sainik school exams are taken in grade 6. So in which they are not getting clear. Sorry, can you repeat your question? As you told that the concepts are getting clear in grade 5 and 6. So the Navodaya and Sainik school exams which are very famous in India, they are taken in grade 6 and they are not clear in grade 5. So and CBSE both schools are preparing for that exam from grade 3 to 4. Yes. Please, ma'am. So, my dear child, sit down. Schools are not preparing children for those institutes. I know from my own experience, no school does. Only some coaching centers do. Okay? And that's a choice. And then they do not base the information based on NCRT books. It's pretty vast. Okay? And what I am trying to tell you, out of 30 years, I have been in Cambridge School 5 years previously, and rest ICS and CBSE. So, I have seen children prepare for various competitive examinations, not just JEE or NEET, there are many others. And what matters most is diving deep and understanding the concepts. We started with that, and we will all continue to say the same thing, because unless concepts are understood, whether it's NEET, whether it's any other course abroad, wherever, you would not understand. The only catch in India is there are so many coaching institutes and they make you do so much. They make you attempt so many questions, as Sir had previously said, in the hope that you have practiced enough, caught up on the speed. That's not the way. They take away your childhood. So I would say, understand the curriculum that we have, and we will have a bridge course also launched in school. The book which has been published by IGCSE now, Cambridge now, and we will see how it goes. Okay, thank you. यस, एक एडिशनल बेनिफिट आपको ये है कि आप फॉरेन एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं और उसमें बेटर कर सकते हैं, अगर सीबीएसई या अदर बोर्ड्स के बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम होता है. एंड एज वी नो कि मेडिकल साइंस इंडिया के अलावा बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं. एंड नॉट ओनली मेडिकल साइंस, इवन टेक्निकल जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं इफ़ यू आर इन IGCSE, और समटाइम उसके एंट्रेंस को ईजिली क्रैक कर पाते हैं. एंड एक जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो दिस टाइम बहुत सारे बच्चों से बात करते हुए मुझे समझ में आया कि बहुत बार खासकर गुजरात के बच्चों से मैं बात कर रहा था, उन्होंने क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाए. मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था? बस सर उसका इंग्लिश नहीं समझ में आया. नहीं, दिस इज अ फैक्ट. क्वेश्चन को आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे तो आप आंसर नहीं कर सकते. एंड आपके पास एडेड एडवांटेज है तो कम से कम आपको कभी भी ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आया. तो ये आपका ऐसे भी एडवांटेज है. एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? यस. Sir, again in LN institution, you just have to join dummy school and then go to LN. So there they also clear the concepts of school. Then they have a new thing called proficiency of NEET and JEE, where they explain the NCRT based questions and this DC Pandey thing. And according to the level they started doing from grade 6, the questions
level of grade 6, they give it structured as NCRT questions. And then they have proficiency test. So from grade 6, we know the structured question of NCRT. So we will be, it would be a hard thing if there are lengthy questions when we give our NEET exam. नहीं, इसमें एक कैच है. अगर आप एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कर लेंगे, सिम्स टू बी, बट ये फैक्ट नहीं है. अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर मैं अभी 2-3 क्वेश्चन की बात कर रहा था, अगर ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, अगर उसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियर नहीं है तो हम चाहे 1000 क्वेश्चंस बना लें स्ट्रक्चर्ड भी, दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प. थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा रियल एग्जाम में और बच्चा फेल हो जाएगा. Sir, but the thing is, they give you the questions from grade 6 level. ऑफ कोर्स ग्रेड 6 से दे रहे, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वहां भी They कि even प्रॉपर गाइडेंस. मैं इनिशियल स्टार्ट किया था एक चीज, मैं किसी के लिए अलग से नहीं बोल रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं ले रहा हूँ. मैंने आपको एक चीज बताया कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आंख में पट्टी बांध के हाथी को टच कर रहे हैं. सॉरी टू से, आप बता सकते हो उसमें से जो लोग भी कि कहीं भी करा रहे हैं, वो नीट खुद क्रैक कितने लोगों ने किया है? Sir, my sister is the NEET aspirant in. ऑफ कोर्स नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो उनको कोच कर रहे हैं उन्होंने नीट क्रैक किया, शायद नहीं. मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बस एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि जो रास्ता मैं जो देखा होता है वो बेटर बता सकता है. Isn't it? And there's one more thing what I believe is that a child should be exposed to the school life also. Because I'm not in a favor of dummy kind of a concept. Because these are the golden years, this is the learning phase of your life. I believe that learning never ends. Again, the ability that you have in this age group now, so why do you want to refrain yourself from going to the school and just getting into the dummy kind of a pattern or a structure? I don't believe in such pattern. स्टूडेंट की जो प्रॉपर पर्सनालिटी तभी तो निखरेगा. पर्सनालिटी बेकार हो गया तो फिर डॉक्टर क्या बनेगा? Grooming and personality development is required. That you get to once you are in a school, then in that case it is possible. That is the first and foremost thing, right? Second thing, your syllabus is so advanced. It is really so advanced. You can very well match the books of the other boards also, including the CBSE boards, the NCERT books, and your IGCSE board. You will be able to evaluate it on your own that your books are running in an advanced manner. You are already 2 levels upgraded, right? And that is going to help you in the Olympiads also. Yeah. One last question. Yes. डीसी पांडे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऑथर हैं और पर्टिकुलरली नीट के लिए, इवन जेई के लिए उनका बुक आता है, सब्जेक्ट फिजिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है फॉर नीट एंड जेई. ओके, राइटर. I hope we are able to solve all your doubts, all your queries. Yes, one last. Sir, is there any book of multiple choice questions for NEET, biology and chemistry? There are many which are many. First, you need to have a command over the concepts, and there are. First, you need to have the command over the concepts. Then there are multiple books available which are totally based on the NCERT. The multiple choice questions are straight from the NCERT, page by page, and there are multiple other books, beta. Okay? थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for guiding the students regarding the NEET and the JEE exams. There are some very important things I think we have understood, and the first and the foremost thing that we have understood is understanding the concepts. So now onwards, if you are planning in this direction, whatever grade you are in, right, just take the first thing in your mind, or keep that first thing in your mind, that okay, to develop conceptual understanding for the
topic that you are studying. Once you understand the concept, already what we are doing is we are solving the questions which are application based. And finally, whatever the difference is there, that is what is basically the gap. So we have got solution for the gaps also now, right? That how to bridge the gap. And as rightly said that Cambridge has already introduced a book, or you can say a syllabus, where whatever the difference is there in the Indian board and the Cambridge board, whatever the small difference is there, that too is also covered, right? So I think if you continue in this board till grade 12, if you develop the concepts properly, and whatever the important points sir has shared with you, if you keep in mind, I think you will be successful in future, right sir? Right, so with this I would like to end this session. I thank you all of you for listening to us patiently, and I hope you will take some important points with you, right? Thank you very much, and I request all students to proceed to their classrooms. Thank you.